Hello friends, welcome again. So today we are going to discuss one of the wonderful thing of our part of our body, I can say, of our body, that is eyes. So we are going to discuss today the colorful world, the human eye, how do we see the colorful world, कैसे हमको दिखता है कोई भी चीज़, हमारी आंखें कैसे काम करती हैं. Okay, so we are going to discuss that all in this chapter. So the chapter is the human eye and the colorful world. As the name indicates, how does our eye function and the colorful world. We can see the colorful world with the eyes only. हमारी आंखें ही हैं जो हमको दिखाती है कि दुनिया कितनी रंगीन है, okay? कितने colors की भरी हुई है. That is due to the eye, okay? So we are going to discuss in this chapter. Other than this eye also, we are going to see some more things about the light, about the prism we are going to discuss, scattering of light we are going to discuss, dispersion of light we are going to discuss, and some phenomena in our daily life. हमारे daily life में क्या क्या activities कुछ कुछ होती हैं lights के कारण, उसको हम discuss करेंगे इस chapter के अंदर. Okay, so let's move ahead with this chapter and enjoy this journey. Okay, so the very first thing what we are going to discuss all the things in a brief points. It's given to you. The human eye, the working of the eye, the benefits of the eyes. We are having two eyes in the front. कई जानवरों के आप देखते हो आईज थोड़े सेपरेटेड होते हैं, हमारे दोनों आईज एकदम फ्रंट प्लेन में ही है. ओके, देन परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड अकोमोडेशन ऑफ साइट आईज, वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक सम ऑफ द डिफेक्ट्स आल्सो, डिफेक्ट्स ऑफ द आई. आंखों में कभी कभी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है कुछ कारण से. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट्स आल्सो, लाइक short sightedness, long sightedness, presbyopia, astigmatism, then catarasis. We are going to discuss those defects also. Then we are going to talk about prism also, prism in which a light behaves a different little bit. We'll talk about that also. पढ़ा होगा आपने छोटे क्लासेस में prism में क्या क्या होता है. And then dispersion of light takes place in a prism, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. dispersion के phenomena कुछ कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, that also we are going to discuss. And then scattering of light and the use of scattering of the light, कहीं कहीं हम करते हैं उसको. So we are going to discuss all that thing. But सबसे पहले the first, the human eye, we are going to discuss it. Let's discuss the structure of eye. सबसे पहले हम eye का structure discuss करते हैं. So if we talk about the eye, तो eye जो हमारी है, it is nearly of the size of a table tennis ball. Okay, table tennis ball जो हम देखते हैं उतने बड़े size का होता है approximately. The overall the structure of the eye, पूरा eye जो हमारे पास है, it is made up of 3 layers. Okay, the outermost layer is called as sclera. उसके अंदर एक layer होती है choroid और सबसे अंदर retina. The innermost part, this part is called as the retina. If you talk about, let me mark all these things. Innermost part, this is called as the retina. Retina के ऊपर वाली layer हमारे पास होगी choroid and the outermost layer is called as sclera. तो sclera जो होता है वो whitish color का होता है, जो आपको आंखों के ऊपर दिखता है. ये whitish color का जो हमारी आंखों में दिखता है, that is the sclera part. और उसके अंदर एक layer होती है जिसको हम कहते हैं choroid और उसके अंदर एक और layer है innermost layer which is called as retina. ओके, व्हाइटिश पार्ट जो हमारे पास है वो है स्लेरा. ये व्हाइटिश पार्ट ऊपर से आता है एंड देन इट इज बल्जिंग, थोड़ा बहुत यहाँ पे बल्ज आउट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्निया. ओके, थोड़ा सा बल्ज आउट होता है. द होल ऑफ द आई इज व्हाइट बट कॉर्निया पे आके ट्रांसपेरेंट हो जाता है. हमारा आउटरमोस्ट लेयर जो है वो कॉर्निया पे आके ट्रांसपेरेंट हो जाता है सो दैट लाइट कैन एंटर द आई. कॉर्निया थोड़ा बल्जिंग पार्ट है. एंड जो कॉरोइड पार्ट है, यही कॉरोइड का थोड़ा बहुत एक्सटेंशन हमारे पास, यू कैन सी हियर अ लिटिल बिट ओवर हियर, व्हिच इज कॉल्ड एज आयरिश. दिस इज कॉल्ड एज आयरिश, जो कि अगर हम आंखों को सामने से कभी देखें, इफ यू ड्रॉ द आई लाइक दिस, जनरली हम आंखों को ऐसे ड्रॉ करते हैं. दिस पार्ट इज कॉर्निया, द बल्जिंग आउट. और कॉर्निया के अंदर भी जो हम देखते हैं, व्हाट यू से ब्लैक कलर्ड आइज, ब्राउन कलर आइज, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, जो भी आइज के कलर हम कहते हैं, that is this the color of the iris. That is actually iris over here. तो वही यहाँ पे extension है. This is the iris part of the eye. और बीच में जो छोटा सा होल दिखता है, that is the pupil through which the light enters the eye. Pupil से light अंदर enter करती है. So this is the part is the pupil. Okay. So now and then behind the pupil we have the lens over here. The lens, the very important part of the eye, which focuses the image. Whatever the light enters inside, it focuses the image on the retina. It focuses the image over there at the retina. Okay, retina is the most sensitive part of the eye which senses the light. Okay, retina का main काम क्या है? It mainly consists of the sense cells.
लाइक रॉड्स एंड कोन्स। दो टाइप के सेल्स होते हैं रेटिना में, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो आपको कम रोशनी में भी देखने में हेल्प करेगा, तो लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करता है। एंड देन वी हैव कोन्स। कोन्स है तो लाइट के कलर को सेंस करता है, द ब्राइट कलरफुल थिंग इट इज सेंस्ड बाय रेटिना, कोन सेल्स इन द रेटिना। एंड द रॉड्स किसको सेंस करते हैं हमारे पास, सेंसिटिविटी टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कम रोशनी में देखने में आपको हेल्प करेंगे। लाइक सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन से, किसी में रॉड्स ज़्यादा होते हैं, किसी में कोन्स ज़्यादा होते हैं। इसी कारण होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात को देख सकते हैं, उनमें रॉड्स अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, ओके, जो रात को अच्छे से देख सकते हैं। बट बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, बर्ड्स में रॉड्स की कमी होती है, तो दे कांट सी इन द डार्क। इसलिए बर्ड्स जो भी चिड़िया होते हैं शाम को होते हैं अपने घोंसले में आ जाते हैं, क्यों, रात को उनको दिखता नहीं है जनरली, ओके। कॉक, मुर्गा जिसको कहते हैं कॉक, इट ऑल्सो सुबह सुबह होती है चिल्लाता है, वाई, he can see the world the whole night, he is like a blind, the early morning he can see the world and with joy it crooks, okay। So rods और cones, इनकी बात है, cones ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं तो कलर देखने में अच्छा मदद मिलती है हमको। अगर हमारे cones में डिफेक्ट है then a person becomes color blind। हमारे आंखों के डिफेक्ट है, दो बहुत कॉमन डिफेक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंड एंड कलर ब्लाइंड। नाइट ब्लाइंड मीन्स कम रोशनी में आपको देखने में नहीं बनेगा, you can't see better in a dim light, and colorblind, a person who can't differentiate between colors. So colorblind is due to less number of cones and night blind is due to less number of rods, and simply we can say. So retina mainly consists of rods and cones, and this area of the retina which is called as yellow spot, we call it as yellow spot, which has more concentration of the cone cells over here। जो भी चीज आपको देखना होता है उसकी ब्राइट इमेज, द इमेज इज फॉर्म्ड ओवर हियर ओनली ऑन द येलो स्पॉट। सबसे मेन जिस चीज पे भी आप कंसंट्रेट करते हो देखने के लिए उसकी इमेज बनती है येलो स्पॉट पे। एंड येलो स्पॉट मेनली कंसंट्रेशन ऑफ द सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स आर मोर एट दिस येलो स्पॉट, मोर कंसंट्रेटेड ऑन दिस पार्ट ऑफ द रेटिना, ओके। सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लेंस हो गया हमारे पास, लेंस के पीछे का पार्ट और लेंस के आगे का पार्ट, दिस इज टू पार्ट्स ऑफ द आई। वन इज कॉल्ड एज द विट्रस चैम्बर, वन इज कॉल्ड एज द एक्वस चैम्बर। विट्रस चैम्बर में लिक्विड भरा होता है जेली टाइप एंड दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। एक्वस चैम्बर में लिक्विड भरा होता है एक्वस ह्यूमर, दैट इज क्रिस्टलाइन क्लियर लिक्विड, ओके। सम मोर थिंग्स टू बी नोटेड ओवर हियर, द लेंस ओवर हियर is held by muscles over here which are called as suspensory ligaments or ciliary muscles, you can say, which hold the lens at their positions. You can see over here the ciliary muscles over here are there which holds the lens at its position। वो लेंस को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेंस को स्ट्रेच करके पतला करता है, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ा मोटा भी करता है, ओके। आवर लेंस चेंजेस द शेप so that it can focus the far off image of the far off things as well as nearby things on the retina। तो अपने फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है लेंस, ओके। सो लेंस that is done by the use of ciliary muscles। तो ciliary muscles को होल्ड करके रखते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी हमारे पास हैं जो इसको होल्ड करके रखते हैं। सो यू गॉट टू नो व्हाट इज द कॉर्निया, व्हाट इज आयरिश, व्हाट इज प्यूपिल, व्हाट इज एक्वस ह्यूमर, व्हाट इज क्रिस्टलाइन लेंस, ओके। एक बार इसका वर्किंग पूरा अच्छे से समझ ले, हाउ डज द आई वर्क्स। सो एनी ray of light from any object, किसी भी object से ray of light is coming over here, this lens converges and forms the image at a spot called as yellow spot। So there the image is formed. This image is sensed by the sensory cells, the light sensitive cells like rods and cones. They take the information and send to the brain. How does the signal goes to the brain? Now here we have nerves going from here which is called as optic nerve, which takes the signals from the eye to the brain and then the brain analyzes that image। यहाँ से signal brain तक जाती हैं and brain उसको analyze करता है कि क्या चीज़ है, what you are seeing, वो क्या चीज़ है, कैसी है। The image formed over here is inverted, convex lens नहीं है, inverted image बनाएगा लेंस, हमारा brain वापस उसको सीधा करके आपको interpret करके बताएगा। ये पॉइंट जहां से लेंस, यहां से हमारी नर्व्स अराइज होती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट, वी कॉल इट एज ब्लाइंड spot. The point from where the optic nerves arise, that point is called as blind spot. Why do we call it blind spot? Because that point is devoid of any rods and cones. जो sensitive cells है हमारे वो वहाँ पर नहीं होते हैं. अगर कहीं कुछ ही
किसी कारण से ये रेज बेंड होकर इमेज अगर यहाँ बनती है, if the image is formed at this point, that person can't see. Okay, that person is blind, that person can't see the image actually. Okay, so that is a problem. Why? Because at blind spot there are no light sensitive cells like rods and cones, they are absent at blind spot. Okay, from the blind spot the nerves arise for optic nerve and they go to the brain. So these are the basic main parts of the eye which are used, which we must know कि at least इतनी चीजें तो पता हो कि हमारा eye functioning कैसे करती है. Okay, so that was about eye, the structure. Moving forward, so this is a cross section view of the eye. अगर हम आँख को सामने से देखें तो what do we find over here? This is the white part, I told you, the sclera part. This is the cornea part. कॉर्निया के अंदर बीच में एक छोटा सा होल टाइप दिखता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल. और द कलर ऑफ द आईज, ब्राउन आईज, ब्लू आईज, ग्रीन आईज, ब्लैक आईज जो भी कहते हैं, दैट इज द आयरिश. ना आयरिश इज द मस्कुलर पार्ट. उसका काम क्या है, इस प्यूपिल के ओपनिंग को कंट्रोल करना. ये प्यूपिल कितना खुलेगा वो कंट्रोल कौन करता है, आयरिश. अब प्यूपिल की साइज कितनी होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. हमारी आंखों के लिए ज्यादा रोशनी हानिकारक है. देखते हो ना, यू कांट लुक डायरेक्टली टू अ ब्राइट लाइट, आंखें एकदम से बंद होने लगती है. व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इज हार्मफुल फॉर द आईज. तो अपने आप आई रिस्पॉन्ड करती है कैसे अपने आप को बचाने के लिए. ओवरऑल सबसे मेन है यहाँ पर, दिस लाइट एंटर्स द आई थ्रू दिस होल कॉल्ड एज प्यूपिल. अब प्यूपिल की साइज को कंट्रोल कौन करेगा, आयरिश. अगर आप डिम लाइट में है तो ये प्यूपिल एक्सपैंड होकर रहेगा, सो दैट मोर लाइट कैन एंटर, यू कैन सी इजीली. इफ यू आर इन अ ब्राइट लाइट, एकदम धूप में हो, ज्यादा रोशनी में खड़े हैं, तो प्यूपिल की साइज छोटी हो जाएगी. कैसे होगी छोटी? ड्यू टू दिस आयरिश पार्ट. आयरिश इज अ मस्कुलर टाइप लेयर which expands and contracts, and due to which the size of the pupil is controlled. Okay, so that is the function of iris and pupil. To watch the complete video, download the Upbind educational app from Play Store and App Store.